আৰক্ষীৰ জালত পৰিল চলন্ত ৰেলৰ চিৰিয়েল কিলাৰ ৰাধা কুমাৰী ললিমা দেৱী সিঙৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিকাশ দাস ওৰফে বুবুক। আৰক্ষীৰ জেৰাত হত্যাকাণ্ডৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে বিকাশ দাস ওৰফে বুবুৱে। বৃহস্পতিবাৰেও বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ দবাত সোমাইছিল বুবু। চিচিটিভিৰ ফুটেজ চাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিকাশ ওৰফে বুবুক। বৃহস্পতিবাৰেও বুবুৰ হাতত আছিল এখন গামোচা। বুবু পেছাত তিনিচুকীয়া ৰেল ষ্টেচনৰ এজন চাহ দোকানী। এই দুই হত্যাকাণ্ডত আন এজন লোকো জড়িতৰ কথা সদৰি কৰিছে বুবুৱে। বিকাশ এটা ভয়ানক অপৰাধী। বিকাশক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে এই মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু সকলোৱে জ্ঞাত যে ৰেলত দুটাকৈ সেই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী ৰাধা কুমাৰী আৰু আন এগৰাকী মহিলা ললিমা দেৱীক নৃশংসভাৱে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাইছিল। আৰু এই আক্ৰমণৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি কেইবাজনকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যদিও অৱশেষত মূল অভিযুক্ত বিকাশ দাস ওৰফে বুবু আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। তৃতীয়টো এই জঘন্য কাণ্ডৰ টাৰ্গেট কৰিয়ে ৰেলত উঠিছিল বিকাশ দাস। আৰু তৃতীয়টো আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে তিনিচুকীয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইজন বিকাশ দাস নামৰ মূল অপৰাধীক। আমি দৃশ্য দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। এইজনে হৈছে বিকাশ দাস। যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল ৰাধা কুমাৰী। ঘৰৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত ৰেলতে হত্যা কৰিছিল এইটো পাখণ্ডই। আৰু তাৰ পাছতে আন এটা ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল। এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু দুইটা মৃতদেহে অৰ্থ উলংঘ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত বিভিন্ন দল সংগঠনে দোষীক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী তুলি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাই গৈছিল অভিযান। আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহত আন দুজন লোককো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানত অৱশেষত মূল অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু দুটাকৈ হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে এইজন বিকাশ দাস ওৰফে বুবুৱে। বৰ্তমান বিকাশ দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ৰাধা কুমাৰী ললিমা দেৱী সিঙৰ হত্যাকাৰীক অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এজন বিকাশ দাস ওৰফে বুবুক। আৰক্ষীৰ জেৰাত হত্যাকাণ্ডৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে বুবুৱে। বৃহস্পতিবাৰেও বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ দবাত সোমাইছিল বিকাশ দাস। আৰু চিচিটিভিৰ ফুটেজ চাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিকাশ ওৰফে বুবুক। বৃহস্পতিবাৰেও বুবুৰ হাতত আছিল এখন গামোচা। আৰু পূৰ্বেও গামোচা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এই অভিযুক্তৰ পৰা। আৰু বৃহস্পতিবাৰেও বুবুৰ হাতত আছিল এখন গামোচা। আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰি অৱশেষত বুবুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বুবু পেছাত আছিল তিনিচুকীয়াৰ ৰেল ষ্টেচনৰ এজন চাহ দোকানী। এই দুই হত্যাকাণ্ডত আন এজন লোকো জড়িতৰ কথা ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে বুবুৱে। আৰু আন লোকজনক বিচাৰিও আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে যে বিকাশ এটা হৈছে ভয়ানক অপৰাধী। ऐसा कि ये फर्स्ट केस जो है, जो इंसिडेंस है वो 10 तारीख को हुआ। 10 तारीख को जो हुआ तो वो लड़की जो है कि सिंबल शिव सागर से और फर कटिंग के लिए निकली थी। ये विमल दास जो है कि ये हार्डकोर क्रिमिनल है। इसलिए अपने दूसरे साथी के साथ में डिब्रूगढ़ से उस गाड़ी में बैठा। वहाँ पे इसने देखा कि ये कोच जो है कि इसके अंदर अकेली लेडीज ये चढ़ी है। इसने उसकी मदर को बात किया, इसकी मदर को बात किया कि हम हेल्प करें। उन्होंने इसका हेल्प नहीं लिया, उसका हेल्प नहीं लिया। इसने इसकी मदर को बात किया था। फिर वो जब लड़की अंदर बैठ जाती है अकेली, ये उसमें इंटर हो जाते हैं। दोनों ने उस लड़की को कब्जा के उसके साथ में इसके साथ में एक और था जिसने उसने इसका हेल्प किया। इसने उसका रेप किया। रेप करने के बाद जो है कि ये उस लड़की को मार दिए गला घोट के। जो इन्होंने यूज किया वो आपका जो असमी गमछा है वो यूज किया गंदे किस्म का। उसके बाद ये सिंबलगुड़ी में
चलती ट्रेन से उतर गए 10 और उतरने के बाद ये फिर वापस यहीं आता है, तिनसुकिया आता है। तिनसुकिया आता है तो कल जो है कि जो परसों का जो केस हुआ था उसमें हम मीटिंग सिमलगुड़ी में कर रहे थे। हमने जो है कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे हमारे पास में उन सब की स्टडी सिमलगुड़ी में कर रहे थे। तो उसमें ये डाउटफुल जो है कि उसी कोच के आगे पीछे दिख रहा था। तो ये चीज लेके कि हमने कि अगर ये पर्सन डाउटफुल है तो कल जब हम मीटिंग कर रहे थे तभी इंफॉर्मेशन मिली कि एक और मर्डर हो गया। वो मेरी आदमी ने फर्स्ट टाइम मैंने एडीजी साहब को बोला कि सर अभी फिर से मर्डर हो गया। बोले क्या बात कर रहे हैं? तो जब उन्होंने बताया कि कैसे कहते तो ऐसे, तो मैंने कहा अगर इस केस में हुआ है तो दोनों ही ट्रेन में हमारा स्टेशन कॉमन है, न्यू तिनसुकिया की। जो परसों जो ट्रेन था वो यहीं से ओरिजिनेट तिनसुकिया से ओरिजिनेट हुआ। कल जो ट्रेन था वो भी तिनसुकिया होकर गया था। तो यहाँ तिनसुकिया में हमारे पास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है। तो मैंने कहा इस आज की ट्रेन का मैं अभी देख लेता हूँ। हमने यहाँ पर बोला कि हम वापस आ रहे हैं। रात भर वहाँ पे मीटिंग करने के बाद और वहाँ का सब देखने के बाद जो है कि जब यहाँ वापस आए सुबह में तब ये हमें वॉच कर रहा था। हाँ जो उसने बताया ये हमें वॉच कर रहा था, इसने हमें देखा। हमें इन्होंने जो है कि जिस ट्रेन से हम गए थे कल उस ट्रेन से भी देखा। यहाँ ये उतरे, हम भी उस ट्रेन से गए थे। उस टाइम पे जो है कि जब ये वॉच कर रहा था तो तब ये साइड में हो गया। फिर हम ऑफिस में पहुंच के मैं वहीं से सिमलगुड़ी से मेरे एक सब इंस्पेक्टर को साथ में लेके आया था जो इंटेलिजेंस ब्रांच का मिस्टर जयराम। तो उसको हमने जो है कि आप एक काम करें कि जो आदमी ये डाउटफुल लग रहा तो जितने भी SLR है वहाँ पे वॉच की जाए। तो वो प्लेटफार्म पे गया तो प्लेटफार्म पे जैसा वो सीसीटीवी में दिख रहा था, कल ट्रेन जब यहाँ पे आया मर्डर करने के बाद ये प्लेटफार्म साइड नहीं उतरा, ऑफ साइड उतरा। अच्छा ऑफ साइड उतरा, बैग इसका पीछे लगा हुआ था। बैग के साथ में प्लेटफार्म पे ऊपर चढ़ाए और फिर जो है 2 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी आया था 1 नंबर प्लेटफार्म पे कल। तो उसमें जब ये आया तो मैं कहा ये आदमी तो बोले साहब इसी से है, क्योंकि फुटेज इतना क्लियर नहीं था। तो जब इसको लाया इसको दिखाया, इसने सामने अपना ये देखा सर ये मैं ही हूँ। इससे क्यों उतरे? सर मुझे जाने का था, बहानेबाजी किया। ये चेक कराओ आपका बैग चेक कराया तो उस लड़की का जो 10 तारीख को इंसिडेंस हुआ, उस लड़की ने शिव सागर से मॉर्निंग में 8:08 पे एक टिकट इशू कराया था, फरकटिंग जाने का था उसको। वो टिकट इसके पास मिला। अच्छा विकास दास बैग में। फिर उस लड़की का जो मोबाइल था वो इसके पास मिला। वो जिस कंपनी का था हमने तुरंत जो है एडीजी को फॉरवर्ड किया, उसकी मदद से कंफर्म किया कि हाँ मेरी लड़की का। कोई बोले ये कैसे? मैं ये कैसे से मिल रहा। फिर और बाकी जो तरासी जो कल जो इंसिडेंस हुआ उसके ऑर्नामेंट्स दोनों मिले इसके, जो कानों पे गोल्डन के थे और पैर में जो है सिल्वर की पायल जो बोलते हैं आप लोग, वो 2 पायल थी, वो इसके पास में मिला। तो फिर जब ये वो उसके हाँ आप बता रहे हो, लेकिन वो तो इसने बोल दिया कि जो है कि मैं काम करते हुए लगा। हाँ तो हमें आ गया था। लेकिन जब ये चीज मिला तो जो उसके लड़के हैं, इसने बताया ये मेरी सिस्टर का है, ये ऑर्नामेंट्स वगैरह मेरी सिस्टर के हैं। तो सिस्टर कहाँ रहती है कि तिनसुकिया। मगर जल्दी से चलो इसको तिनसुकिया लेके गए। तो वहाँ पे कि मना है कि हमारा नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना। तो उसके बाद जो है किसने है कि मैंने कहा आप मार खाओगे तो हमें सही बताओ जो भी है। तो फिर इसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, फिर इसको सीसीटीवी फुटेज दिखाया, देखो आप उतर गए इससे। तो ये बोला कि सर ये उस लेडीज का ही। तो फिर हमने उसके लड़के को बुलाया, उसका फोटो लेके उसके भेजा स्कैन करके। उसने बोला ये मेरे मम्मी। जो कल जो मर्डर हुआ तो उसके लड़के उसको बैठाने आए थे, तो दोनों पायल और कानों के जो वो उसकी मम्मी के मिले, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। दोनों ही मर्डर केस में जो लड़की के पास से विक्टिम्स के पास से दोनों ही विक्टिम्स के पास से जो सामान मिले थे वो सब इसके टैक्स है। इसके अलावा ये शख्स जो है कि प्लेटफॉर्म टिकट लेता है। कोई भी आम आदमी आप असम में देख सकते हैं, आप भी जाते होंगे तो कभी कोई टिकट प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ नहीं लेते, सिस्टम ही नहीं। सिस्टम वो एक जो ऐसा रहेगा लेते में ये नहीं कह रहा, लेकिन जनरली नहीं लेते। तो इसके पास में डेली का टिकट है, प्लेटफॉर्म टिकट, ताकि कोई इसको पकड़े नहीं। वो भी एक डाउटफुल है। एक 4th क्लास लेबर क्लास आदमी, या तो किसी को आप छोड़ने आओगे ड्रॉप करना तब आप टिकट लोगे, या किसी को रिसीव करने आएंगे। आप किसको रिसीव करना है कि प्लेटफॉर्म टिकट क्यों खरीदते हो आप? प्लेटफॉर्म टिकट ऐसे लेता है कि कभी कोई बोले कि भाई यहाँ क्या कर रहा था, प्लेटफॉर्म टिकट दिखाए और निकल गए।
तो ये सब डाउट जब इस पे गया, जब इसको फिर तब इसने बताया कि हाँ, लेकिन उस टाइम पे ये बोला कि मेरे साथ में जो था उसका मैं बताया, तो उसके यहाँ गए तो वो वहाँ पर नहीं मिला, लॉक लगा हुआ था। तो ये दोनों घटना में ये दोनों घटना में दोनों ही थे। उसमें मेन ये है विकास दास मेन है। विकास दास ने दोनों ही लेडीज का रेप किया। और साथ में जो है इसका नाम क्या है? वो साथ में जो ये बताता है उसको कि विपिन पांडे उसका नाम था, पंडित के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जब हम वहाँ गए तो उसके पास जो आइडेंटिटी कार्ड मिला उसमें जो है कि पांडे ने उसका वो दिया था, और उसमें उसका जो फोटो मिला, तो फोटो जो है कि जो पुलिस ने स्कैन करके कलकत्ता से जो मंगाया था, और वो फोटो हमने दिया, दोनों सेम एक ही। घर कहाँ पे है? मोडस ऑपरेंडी सेम था जी। मोडस ऑपरेंडी तो एक ही आदमी करने वाला तो सेम रहेगा। आप भी समझे, वही कोच ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कोच इंजन से अटैच रहता है उसमें विकलांग रहता है, विकलांग के बाजू में जनरल रहता है, उसमें अक्सर पैसेंजर नहीं बैठते हैं, वो खाली रहता है। यहाँ पे ट्रेन आपके क्योंकि लास्ट स्टेशन पड़ जाते हैं, ऐसे भी खाली रहते हैं। आज भी थर्ड प्लानिंग था, इसने उसी काम को करने के लिए गमछा ले लिया था, गमछा इसके पास से बरामद हुआ। जो गाल में जो घाव है, जो परसों जो इंसिडेंस हुआ, उस लड़की ने जो है अपना बचाव किया, उससे इसको गाल पे अभी इसका क्या कन्फेस कर लिया है? ये इसने कन्फेस कर लिया कि दोनों में मैंने रेप किया। दोनों का घर कहाँ पे है? जी, दोनों का रेप मारिया। हाँ, ये दोनों का घर कहाँ है? इसका जो घर है ये डिब्रूगढ़ में। दूसरा जो है कि बिहार का रहने वाला, किसी को उसका परमानेंट एड्रेस का सही मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक खोली में रहता था। वो खोली में जो है गए तो खोली का लॉक मिला, अंदर जो सामान मिला उसमें उसका फोटो मिला, एक जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस की खाली फोटो कॉपी। विकास दास यहाँ पे जो हमारा रेलवे कॉलोनी के एंड में अनऑथराइज इंक्रोचमेंट है। यही आपका जो अनऑथराइज इंक्रोचमेंट है, वही मतलब बहुत अपराधी है क्या? अभी इस केस को देख के लग रहा है कि कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी उनके बीच में रहते हैं। अच्छा, बाकी सभी को अपराधी नहीं कह सकते, सभी का नहीं, किसी को कोई है। लेकिन ये भी जरूर है कि अपराधियों के छिपने के लिए ये एक अच्छी आसान जगह है। ये साइको है क्या? नो, ये साइको नहीं है, लेकिन ये बहुत हार्डकोर क्रिमिनल है। मेरा जी, क्या ये और भी ऐसा कोई वारदात में इन्वॉल्व है? कुछ इसने बोला है इन्वेस्टिगेशन? देखो, अभी लास्ट 1.5 साल हमें यहाँ आए हुए, उसमें जो है कि जो केस हुए वो हम पुलिस को जो है कि बताए कि भाई आपके यहाँ कोई केस रजिस्टर है, मर्डर केस पुलिस में रजिस्टर होता है, उनको हमने बोला कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए दे रहे हैं इसको, ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आपके दूसरे केस भी, और बट नेचुरल है कि इतनी जल्दी 2 मर्डर कर देना। भी इसको असम पुलिस को हैंड ओवर करेंगे? हमने हैंड ओवर कर किसको किया? हमने अभी ये फर्स्ट केस जो रजिस्टर हुआ, जो आपके सिविल सर्विस से लड़की बैठी थी, वो केस जो है कि आपके सिंबलगुड़ी जो है कि ओसी जीआरपी द्वारा केस रजिस्टर किया। अभी जो दिव्यांग आपा इसके लिए जो केबिन था वो आज से आप लोग बंद कर दिए? नहीं, वो बंद करने के पीछे आप उसको गलत नहीं लेने का। बंद करने का मतलब सिर्फ ये था कि उसकी चाबी जो है कि लॉक करके गार्ड के पास दे दिया। अगर सही में विकलांग आता है तो आरपीएफ को वो बताएगा, आरपीएफ उसको एस्कॉर्ट करेगी, चाहे वो विकलांग हो चाहे जो भी है। और अक्सर जो लेडीज आती है, लेडीज को हम उसमें नहीं बैठने देंगे, उसमें हम उसको उसकी बजाय रिजर्व कोच में बैठा देंगे, उससे कोई चार्ज भी नहीं करेंगे। रिजर्व कोच में अगर जगह खाली है तो वहाँ बेड पे जो है उसके जो है कि सिक्योरिटी को। जिनमें सारा घटना हुआ है, आपका पुलिस का जो काम है, पुलिस का सिक्योरिटी नहीं था क्या? नहीं, ये देखो, दिन में जो आपके यहाँ जितने भी ट्रेन है, पहले से एक सिस्टम रहा है, दिन में किसी गाड़ी में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, कभी ऐसा हुआ नहीं था। रात की गाड़ियों में हमने ट्रेन स्कॉटिंग लगाया हुआ है, लेकिन कल से जब ये इंसिडेंस हुआ, रिपीटेड हुआ, हमारे पास में जितनी स्ट्रेंथ थी वो रात में ही उन गाड़ियों को ही कवर कर सकते थे। अभी बाहर से स्टाफ हमें दे दिया गया है, अभी दिन की गाड़ियों में भी